Let me tell you about a shocking fact. Around 89% of the people, like you and me, are making impulse fashion purchases. But to be very honest, social media promised us self expression. And now all of our wardrobes look the same. Have you thought of that? Ever thought of that? That is a question that arises in my mind and in multiple people's mind. So let's discuss it. Hello, my name is Rupanji Kumar, and I welcome you to Renaissance Solocast. आज की वीडियो का टॉपिक है पैराडॉक्स ऑफ फैशन। नाउ बिफोर इवन गेटिंग इनटू द होल वीडियो, हमें पहले ये जानना है कि पैराडॉक्स क्या होता है, राइट? सो पैराडॉक्स इज बेसिकली अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो ऐसे दिखने में तो बहुत ही सच सच लगता है, बट आप उसमें जब डीप डाउन जाते हो तो वो एक झूठ निकलता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोशल मीडिया का एग्जाम्पल हम ले, तो सोशल मीडिया वॉज सपोज टू बी अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता था, राइट? बट फिर सोशल मीडिया में एल्गोरिदम्स आ गए एंड दैट मेड अस ऑल वेयर द सेम थिंग। ठीक है, ऑल ऑफ अस आर वेयरिंग सेम थिंग बिकॉज ऑफ द ट्रेंड्स। दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया जिस पर्पज से बना था और अब वो किस पर्पज पे फंक्शन कर रहा है, राइट? नाउ बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू मल्टीपल मोर एग्जांपल्स इन द होल वीडियो, सो प्लीज स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आपको बहुत ही मजा आएगा ये वीडियो देख के, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमने बात करी, इज अबाउट द टायरनी ऑफ द एल्गोरिदमिक ट्रेंड्स। So, social media came with a promise. Anyone could share anything and everything, from styling tips to inspiring individuality and originality. Platforms gave users their voice. But behind those feeds were algorithms, and algorithms were looking for the most engaged post. Why? Because more the clicks, more the engagement, and more the engagement equivalents to more the sales. और जब कंपनीज को बहुत ज़्यादा सेल्स आ रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, तो दे स्टार्टेड पुशिंग इट वेरी हेविली। हमारा पूरा का पूरा कंटेंट ही उस पे हो गया, जैसे कि अ पीस ऑफ क्लोथिंग यूज्ड टू गेट ट्रैक्शन, अ इंडिविजुअल पोस्ट यूज्ड टू गेट ट्रैक्शन, एंड आवर होल फीड, इवन माय योर एनीवन्स फीड यूज्ड टू बी फिल्ड विद दैट, राइट? कुछ भी ऐसे ट्रेंड कर रहा है वो उसी से फिल हो गया, एंड then people started buying it, the company started getting cuts out of that, even the companies are getting profited. But what happened was, scrolling on these platforms now felt like watching a parade of clones. The paradox in it: original ideas aren't rewarded anymore until it becomes trends, and once it becomes a trend, it's not original anymore. So that was a paradox in it. And now, when we talk about trends, it's important to talk about the abundance of clothes that we have in our wardrobe because of those trends. So, now let's talk about the paralysis of abundance. Clutter is often mistaken for choice. आपको ऐसा लगता होगा कि अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा कपड़े होंगे, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा आउटफिट्स बनाने के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, राइट? मोर क्लोथ्स इज इक्विवेलेंट टू मोर आउटफिट्स. But in some scenarios, this might not be very, very true, and that's a paradox, right? लोग चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चाहती हैं कि आप ट्रेंड्स फॉलो करो, आप बहुत सारे कपड़े खरीदो, आप अपना वार्डरोब भरो, और आप एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से समझो, राइट? If you get 100 shirts into your wardrobe, you have to take small small decisions every morning, right? हर सुबह आपको ये उठ के सोचना पड़ेगा कि मैं क्या पहनूं. You would be confused throughout the whole day. अगर आप बहुत conscious हो about what you wear, you should be conscious about very much about what you wear, right? But अगर आप हर सुबह उठ के ये confusion में हो कि मैं क्या पहनूं, तो that's a problem. And that problem is happening because of the clutter that you have in your wardrobe, right? Now, just hold on for a moment and just think of this one particular thing. ठीक है, आप जब भी अपने वार्डरोब में जाते हो अपने कपड़े लेने के लिए या पहनने के लिए, आप कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो उसके लिए जब आप कपड़े लेने जाते हो या आपने अपने वार्डरोब से चीज़ें उठाने जाते हो, so you might have observed this, that you, my friend, wear something which is only familiar to you, या आपको ये लगता है कि ये मेरे पे अच्छा लगता ही है तो मैं ये पहन लेता हूँ, and you start repeating that again and again and again, and you're not even looking into the 70% of your wardrobe, क्योंकि आपको ये लगता है कि वो बहुत experimental है and you cannot wear that every day. ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट में मुझे बताना कि मेरे साथ होता है ऐसा, राइट? सो बेसिकली abundance is not solving problems, it basically is paralyzing your mind into thinking that what to wear tomorrow, after that, and after that. So the paradox in this is that each new purchase was made to solve a problem, कि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है तो मैं नए
चीज़ें खरीदूँगा, इससे मेरे वार्डरोब में चीज़ें बढ़ेंगी एंड इसकी वजह से मेरी आउटफिट्स अच्छी होंगी। दिस वाज़ द प्रॉब्लम एंड a new purchase was made to solve this problem. But what actually happened was you bought in a lot of things and now you're confused about wearing things. ठीक है? So that was a paradox. And now, my friend, when do you buy a lot of different things? या बहुत ज़्यादा purchases कब करते हो आप? Particularly fashion में या किसी चीज़ में भी जब आपको बहुत अच्छी डील्स मिलती है, buy one get one, buy one get two, या फिर ऐसे बहुत सारे डील्स कि आपको एक ही प्राइस पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, राइट? But to let you know, this is a trap, the trap of shopping deals, and that's the next paradox. अब इसमें रिटेलर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। रिटेलर्स बेसिकली क्राफ्ट इररेसिस्टिबल डील्स, बाय वन गेट वन, फ्लैश डील्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, बहुत सारी ऐसी डील्स वो ऑफर करते हैं। अब इस ऑफर करने के चक्कर में आप क्या करते हो, आप एक सर्टेन बजट लेके गए हो, राइट? ईदर यू आर डूइंग विंडो शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, एनी सॉर्ट ऑफ शॉपिंग, राइट? यू कीप अ सर्टेन बजट एंड इन दैट बजट यू वांट टू बाय आउट थिंग्स। बट अगर आपको कोई एक चीज मिल रही है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज आपको एक टी शर्ट खरीदनी थी फॉर 1000 रुपीज, राइट? अब क्या हुआ कि आपको तीन टी शर्ट्स मिल रही है फॉर 1500 रुपीज, सो यू टेंड टू बाय और दोज थ्री टी शर्ट्स फॉर 1500 रुपीज, क्योंकि अब इंडिविजुअल टी शर्ट्स की प्राइस बहुत ही ज्यादा घट गई। आपके दिमाग में ऐसा लगा कि यू सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, बट आपको तो 1000 रुपए खर्च करने थे, बट हाउ मच डिड यू स्पेंड? अराउंड 1500। सो इट्स ओवर योर बजट, राइट? 500 रुपए आपने ज्यादा डाले बजट से, तो दैट वॉज अ बर्डन टू योर वॉलेट। आपने एक्स्ट्रा चीजें ली, दैट इज लाइक clutter, that is clutter which would mess up your mind while you are trying to figure out outfits. So this feeling of smart shopping, you think that this was smart shopping, and this feeling of smart shoppings lies there for a certain amount of time, but after a point of time it just evaporates and then you think कि मैंने ये क्या करा है, मेरे पास तो इतना ही बजट था, मैंने ज़्यादा पैसा डाल दिया और अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आउटफिट्स भी कैसे बनाऊँ। तो दोनों सिचुएशंस में you got messed up. So that was the absolute paradox around it. And that was it for the video. I hope you did like the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल देना कि आपको कौन से एग्जाम्पल्स में ज़्यादा मज़ा आया। इस बेसिस पे वी कैन हैव अ सर्वे कि कौन सी चीज़ हम जो बना रहे हैं वो कैसा है, राइट? इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. I have to say one particular thing, that fashion is paradoxical and always will be paradoxical. And to be very honest, I have this interesting statement in my mind that paradox in fashion is very, very simple. ठीक है? Fashion will always promise you something and it won't deliver. ठीक है? And you would always think that new purchase that you are making is great and it has to be great, but is that great? Just tell me that. Thank you for watching. Have a great, great day. Bye bye.